Hello and welcome. Welcome to the second learning session of chapter number 1 of Science 1, which is gravitation. So far in this chapter, what all have we seen? We have looked at gravitation. So whenever an apple falls from a tree, it always falls vertically downwards. That is because of the gravity, and the direction of force of gravity is always directed towards center of the earth, and hence it always falls vertically downwards. That we had seen in gravitation. Then we looked at Newton's laws of motion. The first law, it said that an object in the state of rest or in the state of uniform motion in a straight line will remain in that state unless and until it is acted upon by an external unbalanced force. That is your first law of motion given by Newton. The second law of motion given by Newton was the rate of change of momentum was directly proportional to the force applied, and the equation was force is equal to mass into acceleration. Right? Force is equal to mass into acceleration. So mass into acceleration is nothing but rate of change of momentum. Then the third law of motion given by Newton was every action has equal and opposite reaction. Every action force will have equal and opposite reaction force, and both of them act simultaneously. These were the three laws of motion that we revised in our last learning session. Three Kepler's law. The first law said that planets move in elliptical orbits, right? The shape in which the planets move around the sun is ellipse, and the sun is one of the foci, right? Any ellipse will have two foci. So उसमें से किसी भी एक foci में sun होगा. That was your first Kepler's law. Second Kepler's law, the line joining the sun and the planet will sweep equal areas in equal intervals of time. That was your second law. Third law was the square of टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड. सो उसका स्क्वायर वाज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ the planet from the sun, right? That was the third law. So these three Kepler's law we had seen in our last learning session. Today we're going to look at Newton's universal law of gravitation, and under which we're going to look at what is unit of G, and what is G again we'll understand when we look at Newton's universal law of gravitation. Then we'll see what is center of mass, and we'll see how low and high tides are formed on Earth. All right. So your learning objective for today will be students will be able to state Newton's universal law of gravitation. न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है तुम्हें स्टेट करने आना चाहिए, उसका सेंटेंस लिखने आना चाहिए, उसका स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, एंड उसका इक्वेशन लिखने आना चाहिए, एंड इक्वेशन में जो कोई भी क्वांटिटीज है उन सबका मीनिंग एक्सप्लेन करने आना चाहिए. एंड should be also able to state unit of G. Again, what is G? We'll look in detail when we discuss Newton's law of universal law of gravitation given by Newton. Okay. So in the last learning session, we had looked at Kepler's law, right? First law, second law, and third law. So considerations like Kepler's laws led Newton to formulate his theory of universal gravity. And I last time told you, right? Each and every scientist has his or her own contribution to the scientific community, and using one discovery, the other person discovers something new. Using that new discovery, the third person will discover something new. So something similar happened with Newton as well with respect to gravity. Kepler's को laws को use करके उनकी help लेके न्यूटन ने अपना law of gravitation formulate किया. Okay. So according to this theory, कौन सा theory? Newton's universal law of gravitation. Okay, and we'll see why it is called universal law. अब तक तो हम gravity की बात कर रहे थे. We were saying कि yes, everything is attracted to the surface of the earth, and moon is also attracted to the earth, so on and so forth. The universal क्यों बोला? That again we'll understand after understanding the first point. So according to Newton's universal law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a definite force. Okay, इस यूनिवर्स में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, वो ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड वो अट्रैक्ट करने का कोई डेफिनेट फोर्स होगा. किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उसका डेफिनेट फोर्स है वो. ओके. So there are two interesting things over here. The first thing is in the entire universe.
So say for example at the far side of our galaxy there will be some small particle. Okay, इतना छोटा सा पत्थर है जो हमारी गैलेक्सी के दूसरी तरफ है, तो हमारा अर्थ उस पत्थर को भी अट्रैक्ट कर रहा है और वो पत्थर हमारे अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग ईच अदर. सो द क्वेश्चन इज वो पत्थर हमारे अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, या फिर हमारा अर्थ पत्थर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है. तो रीजन से बहुत दूर है, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता है उतना फोर्स कम हो जाता है. दैट्स व्हाई. ओके, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट से फॉर एग्जांपल इवन इफ यू हैव a small piece of paper in your hand, that piece of paper is attracting the sun, that piece of paper is attracting a star in another galaxy, that piece of paper is attracting an object which is at the far side of our universe, right? And that's true according to according to Newton's universal law of gravitation. Hence it is called universal law कि यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ ये लॉ अप्लाई करता है. ओके, so that's first interesting thing about the first statement. The second interesting thing is every object, okay, every object and definite force bola. Okay, so we took an example of the apple falling towards the earth, right? So what do we always say कि the earth attracted the apple towards the earth. earth ने apple को अपनी तरफ खींच लिया, but यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, राइट? तो उसका मतलब क्या है, एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ खींचा, सो अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ खींचा एंड एप्पल ने अर्थ को अपनी तरफ खींचा, तो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे. ओके, सो दैट्स एन अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट अबाउट दैट सेंटेंस. ओके, so now the actual statement of the law. This force is directly proportional to the product of masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. So to understand this, it's better that, so it's basically describing an equation. So this is the equation, right? The force, right? यहाँ पे लिखा, right? Yeah, the force, yeah, this force. So this force is directly proportional. तो ये proportionality का sign है. It is directly proportional to product यानी multiplication. तो इन दोनों के बीच में multiplication sign है. Okay, product of masses. तो समझो मेरा mass जो दो objects है जिनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हम निकाल रहे हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस ले लो m1 एंड m2, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस आ गया. सो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली यानी वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके, उल्टा, इनवर्स यानी उल्टा, तो डिनोमिनेटर में चला गया. क्या चला गया डिनोमिनेटर में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम जो d है, तो नीचे d का स्क्वायर आ गया. Okay, I'm going to explain this particular statement one more time because it's a very important statement. You need to remember the statement very well. Okay, so जो force है gravitational attraction का, it is directly proportional. तो ये proportionality का sign आ गया. तो the product of masses, product यानी multiplication, तो यहाँ पे multiplication आ गया. mass यानी ये जो दो objects के बीच में gravitational force ढूंढ रहे उनके masses की बात हो रही है, तो m1 and m2 वो numerator में आ गया. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली यानी उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कुछ भी तो डिनोमिनेटर में चला जाता है. टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो अगर ये दोनों के, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस d है, तो उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, राइट? प्रोपोर्शनलिटी का साइन मतलब क्या? f अगर इंक्रीज हुआ, फोर्स इंक्रीज हुआ, यानी मासेस भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब? अगर फोर्स इंक्रीज हुआ यानी डिस्टेंस कम हो गया, राइट? दैट्स द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर एक चीज इंक्रीज हुई तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी. इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या? अगर एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी कम हो जाएगी, या फिर एक चीज डिक्रीज हो गई तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ हियर G, कैपिटल G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो ये कहां से आया? देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है. हम प्रोपोर्शनलिटी साइन में सिंप्लीफाई नहीं करते चीजों को. व्हाट डू? वी यूज इक्वल टू साइन, इक्वेशंस बनाते हैं, राइट? इक्वेशंस कैसे बनते हैं? इक्वल टू साइन से. सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो f वैसे के वैसे है, m1 इंटू m2 वैसे का वैसा है, डिवाइड बाई d स्क्वायर वैसे का वैसा है, एक्स्ट्रा क्या आ गया? g आ गया. और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो इक्वल टू साइन में कन्वर्ट हो गया. तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल G ले गए. ओके, सो हियर G is the constant of proportionality. इस proportionality साइन को हटा के इक्वल टू साइन लिखने के लिए हमको वो G कांस्टेंट लेना पड़ा. एंड इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगेन व्हाई इज इट कॉल्ड यूनिवर्सल? यूनिवर्स में कभी भी कहीं पे भी जाओ,
ये इस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है. Okay, hence it is called as universal gravitational constant. Okay, again an interesting fact. यहाँ पे देखो, ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. m1 is attracting m2 towards it. Similarly m1 is attracting similarly m2 is attracting m1 towards it. Okay, तो ये जो ब्लू बॉल है वो ग्रीन बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो ग्रीन बॉल है ब्लू बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है. दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है. सी यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी सेम F है. Both of them have the same forces applying on each other. So again, let's go back to our thought experiment or our case or our condition where an apple was falling from a tree on the earth. तो जब एप्पल एक ट्री से गिर के अर्थ के ऊपर आ रहा है, तो अर्थ एप्पल पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? F. वो सेम फोर्स एप्पल अर्थ के ऊपर लगा रहा है. इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, उन दोनों पे फोर्स इक्वल होगा. तो जब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ एप्पल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए एप्पल नीचे आ जाता है. एट द सेम टाइम उसी तरह एप्पल भी अर्थ पे एक फोर्स लगाता है जो अर्थ को एप्पल की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो दोनों फोर्स एकदम इक्वल है. ये इस डायग्राम से भी क्लियर होता है. और वो फोर्स कितना निकालना है, तुम कैसे निकालोगे? वो फोर्स कितना है कैसे निकालोगे? यहाँ पे अर्थ का मास ले लो m1, यहाँ पे एप्पल का मास ले लो m2, और ये एप्पल और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकाल दो, और उसका स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख दो. सो तुम्हें मिल जाएगा कितना फोर्स है. वो सेम फोर्स एप्पल पे भी लग रहा है और सेम फोर्स अर्थ पे भी लग रहा है. सो मोस्टली तो एप्पल ट्रैवल करता है, राइट? अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं ट्रैवल करता? दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, राइट? सो आधा रास्ता एप्पल को आना चाहिए, आधा रास्ता अर्थ को एप्पल की तरफ जाना चाहिए. तो वैसा क्यों नहीं होता? द आंसर इज अर्थ का वेट इज टू मच, राइट? इट्स वेरी हैवी. सो अर्थ ज्यादा मूव नहीं करेगा, ज्यादा एप्पल मूव करेगा. बट इसका ये मतलब है कि अर्थ जरा भी मूव नहीं करता है? दैट्स नॉट ट्रू. अर्थ एकदम थोड़ा सा मूव करता है. आई एम रिपीटिंग दिस. अर्थ एकदम थोड़ा सा मूव करेगा, बट इतना कम मूव करे कि हमें पता भी नहीं चलेगा. ओके, so that's an interesting thing to note. So when an apple falls on earth, apple is also attracting the earth towards it, and वो बहुत हल्के मेजर से वो अट्रैक्ट हो जाएगा एप्पल की तरफ. वो इतना कम होगा कि हमें पता नहीं चलेगा. ओके, so these were some interesting things to note about Newton's universal law of gravitation. Okay, next, the above law mentions that if mass of one object is doubled, the force between the two objects also doubles. Okay, तो समझो यहाँ पे m1 है, m1 जो ऑब्जेक्ट है उसका मास डबल हो गया. तो अगर मास डबल हो गया तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, राइट? यहाँ पे एक 2 आ जाएगा m1 के बाजू में. सो 2 आ जाएगा, यानी मेरा फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, राइट? व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई बाय 2, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई समथिंग बाय 2, वो डबल हो जाता है. सो अगर m1 का मास डबल हो गया तो ये फोर्स जो है ग्रेविटी का वो भी डबल हो जाएगा. ओके, बट ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, द फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. ओके, समझो हमने डिस्टेंस डबल कर दिया, तो दोनों अभी समझो 1 मीटर के दूरी पे थे, अभी इसको 2 मीटर की दूरी पे रख दिया. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में उतना कम ग्रेविटी होने वाला है. बट यहाँ पे डिस्टेंस डबल होने के बाद ग्रेविटी डबल कम नहीं होने वाला, वो 4 टाइम्स कम होने वाला है. क्यों? ये देखो यहाँ पे d है, d की जगह पे 2d डाल दो. ओके, बट d का क्या स्क्वायर करना है, तो 2d का भी तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा. सो 2 into 2 4, एंड d का स्क्वायर d स्क्वायर, तो 4d स्क्वायर आ जाएगा. इफ यू पुट 2d इंस्टेड ऑफ d ओवर हियर, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि d स्क्वायर है. सो 2 का स्क्वायर 4, तो 4d स्क्वायर आ जाएगा. सो 4d स्क्वायर यानी 4 से डिवाइड किया तुमने तो 4 टाइम्स कम हो गया. क्या कम हो गया? फोर्स. ओके, और यहाँ पे 4 आ गया यहाँ पे d के बाजू में, तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो गया. सो अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का डबल होता है तो फोर्स डबल हो जाएगा, बट अगर डिस्टेंस डबल होता है तो 4 टाइम्स उसका फोर्स कम हो जाएगा. इसलिए जो बहुत दूर चीजें होती है वो लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. अगर तुम्हारा सन जितना मास होगा, तुम्हारा जुपिटर जितना मास होगा, तो ही चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे, वरना कम मासेस के लिए तुम कोई अट्रैक्शन नहीं होगा अगर बहुत ज्यादा दूर होगा वो तो. ओके, if the two bodies are spherical, the direction of force is always along the line joining the centers of the two bodies, and the distance between the
centers is taken to be D. ओके, तो अगर समझे दो ऑब्जेक्ट जो है वो स्फेरिकल है, स्फीयर शेप में है, तो डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, ये फोर्स का डायरेक्शन इस ग्रीन स्फीयर के सेंटर की तरफ होगा, और इस ग्रीन एफ का, ग्रीन बॉल पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस ब्लू बॉल के सेंटर की तरफ होगा. ओके, सो ये यहाँ वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है. इफ टू बॉडीज आर स्फेरिकल, दोनों ऑब्जेक्ट्स स्फीयर शेप के होंगे, direction of force is always along the line joining the centers of the two bodies. उनके दो, ये जो दो बॉडीज है, दो स्फीयर्स है, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अलोंग उनका फोर्स होगा. ओके, एंड डिस्टेंस क्या लोगे तुम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से भी तो ले सकते हो राइट, इस एज से लेके इस एज तक, इसको हम डी ले सकते हैं, बट नहीं वैसा नहीं लिया, इस स्फीयर के सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर तक लिया है डी को. So that's what they said in the second part of the sentence. The distance between the centers is taken to be d. तो सेंटर से लेंगे डिस्टेंस, कभी भी ऐसे एज से they won't measure the distance. Okay. In case when the bodies are not spherical or have irregular shape. Okay, समझे स्फीयर के शेप में नहीं है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, उनका बहुत irregular shape है. Okay, irregular यानी अजीब है, कैसा भी शेप है. Then the direction of force is along the line joining the centers of mass. सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उस डायरेक्शन, उस लाइन के अलोंग उनका डायरेक्शन होगा. एंड डी इज टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द मास. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, दैट वील हैव टू डिस्कस नाउ राइट. स्फीयर होगा तो काफी इजी है, स्फीयर होगा तो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके अलोंग उसका डायरेक्शन फोर्स, उसके अलोंग उस फोर्स का डायरेक्शन होगा. एंड डी को भी उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे. बट अगर समझो स्फेरिकल नहीं है, बहुत ही अजीब कोई तो शेप है, इरेगुलर शेप है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट. ओके, सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. At which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. ऐसा assume कर सकते कि उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है उस एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, ऐसा हम assume कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. राइट, सो यहाँ पे यू कैन सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड उनके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहे हैं. The center of mass of a spherical object having uniform density is at the geometrical center. Right, so अगर सर्कल होगा तो उसका सेंटर आ जाएगा, स्फीयर होगा तो उसका सेंटर आ जाएगा. काफी इजी हो जाता है सर्कल के लिए. यहाँ पे भी ये सर्कल नहीं है, रिंग है, तो ऑब्जेक्ट ये ग्रे कलर में है, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्जेक्ट के बाहर है. राइट, क्योंकि ये जो व्हाइट पोर्शन है वो वहां पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास उस व्हाइट पोर्शन में आ गया जहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं. सो ये ऑब्जेक्ट के बाहर सेंटर ऑफ मास आ गया. सो स्फीयर्स के लिए इजी होता है. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. Okay, so for example ये ट्राइंगल देख लो, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तुम्हें उसका सेंट्रॉइड निकालना होगा. कैसे सेंट्रॉइड निकालोगे, सबके मीडियंस ड्रॉ कर दो. ओके, मीडियंस जहां पे मीट करेंगे उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे. सिमिलरली फॉर योर स्क्वायर, सारे वर्टेक्सेस को ड्रॉ कर दो, सॉरी ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, एंड जहां पे वो लाइन मीट करेंगे वहां पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है. ओके, सो सेंट्रॉइड विल बी द सेंटर ऑफ मास अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी. ओके, सो इसका मतलब क्या? ओके, तो समझो एक स्पेसशिप है, उस स्पेसशिप विल फील सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वो एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट के सामने है. ओके, समझो वो एक बहुत बड़े स्टार के सामने है. सो हियर इज योर स्पेसशिप और उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टार है, तो स्टार इस स्पेसशिप को खींचने वाला है. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, स्टार का तो मास बहुत ज्यादा होता है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा. तो स्पेसशिप को ये स्टार खींचने वाला है. बट इस स्पेसशिप को फर्क नहीं पड़ता इसका शेप क्या है. ओके, इसका शेप स्फेरिकल है, इसका शेप ट्राइंगल है, इस स्टार का शेप स्क्वायर है, इस स्पेसशिप को फर्क नहीं पड़ता. उस स्पेसशिप को क्या फर्क पड़ता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है. जब तक उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है, स्पेसशिप का जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका शेप क्या. सो अगेन एन इंटरेस्टिंग इनसाइट फ्रॉम ऑल द फिजिकल लॉज दैट वी आर स्टडिंग, कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका शेप क्या है. शेप चेंज हो जाए बीच में ही, ओके, बीच में अगर उसका शेप चेंज हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, फिर भी फोर्स सेम रहेगा जब तक उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता. सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया तो यस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, राइट. बट जब तक
उसका सेंटर ऑफ मास सेम है, उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सेम रहेगा, शेप कुछ भी होने दो। ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ सेंटर ऑफ मास से मतलब है, ओके। उसको एक्चुअल में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बहुत पतला है, बहुत जाड़ा है, ट्राइंगल शेप में है, स्क्वायर शेप में, उसको फर्क नहीं पड़ता। एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट अबाउट ग्रेविटी, ओके। सो नाउ दे हैव गिवन यू अ क्वेश्चन इन यूज योर ब्रेन पावर। उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोले, ओके। शो दैट द एसआई यूनिट्स ऑफ एसआई इन show that in SI units the unit of G, which is our gravitational constant, right, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में आता है। सो G, which is our gravitational constant, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे के रेज टू -2 है, राइट, यानी वो डिनोमिनेटर में, ओके, रेज टू -2 हो गया यानी वो डिनोमिनेटर में। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये उसके एसआई यूनिट से हमें दिखाना है, ओके। दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। And there's some information also given which you need to remember, okay. The value of G was first experimentally measured by Henry Cavendish, okay. उसने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके उसका वैल्यू निकाला, और उसका वैल्यू क्या था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। 10⁻⁻11, अगेन -11 आया, यानी 10⁻11 से डिवाइड करना है। 10⁻11 यानी 1 के बाद 11 जीरोस, तो ये काफी छोटा नंबर है, ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। सो या दैट इज your value of universal gravitational constant. Also because ये नंबर इतना छोटा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। अगर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता, ओके, समझो 10⁻11 से समझो 10,000 हो जाता, तो बहुत कम मास होने के बावजूद उसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वीक फोर्स, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता ग्रेविटी, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो उसका वैल्यू बहुत छोटा है, ओके। 6.6 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 11 जीरोस, तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा। 0.00000000 ऐसे 10 जीरोस, फिर बाद में 6, इतना छोटा नंबर होगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, ओके। सो अभी ये प्रूव कैसे करेंगे कि इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। सो हियर इज द प्रोसीजर। This is your formula for force of gravity. What you will do is, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको यहीं पे रख दो, बाकी सबको LHS में ले लो, ओके। सो डी स्क्वायर को LHS में ले लो, m1 m2 को LHS में ले लो। सो यहाँ पे f था, सो f यानी f डिवाइड बाय 1, वी कैन अज्यूम इट इज डिवाइडेड बाय 1, राइट। ये जो डी स्क्वायर है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। m1 इंटू m2, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट, और g यहाँ पे रह जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू f के साथ डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड, तो ये यहाँ पे आ गया, एंड नीचे डिनोमिनेटर में m1 इंटू m2, ये दोनों यहाँ पे नीचे आ गया। ये सेम चीज मैंने वापस ऊपर लिखी है, ओके। अभी हमें g का वैल्यू, आई मीन g के लिए फॉर्मूला निकाल दिया हमने, बराबर। भी g का यूनिट्स निकालना है, राइट। तो राइट साइड में जो कुछ भी क्वांटिटीज है उनका यूनिट्स निकालो, ओके। सो g का यूनिट क्या हो जाएगा, f का यूनिट क्या है, न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डी का यूनिट क्या है SI में, मीटर्स, राइट, MKS, SI यूनिट नहीं MKS, m फॉर मीटर, k फॉर किलोग्राम्स, s फॉर सेकेंड्स। सो m फॉर मीटर, सो डिस्टेंस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया, एंड m1 इंटू m2, मास का क्या है यूनिट SI यूनिट्स में MKS, k फॉर kg, सो kg स्क्वायर आ गया, क्योंकि kg इंटू kg आ जाएगा, तो kg स्क्वायर, राइट। अभी उनको ये ऊपर चाहिए, राइट। सो kg को अगर ऊपर लेके जाओगे तो जो kg स्क्वायर है उसका kg रेज टू -2 हो जाएगा। सो तुम्हें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि केजी रेज टू -2 है, नीचे केजी रेज टू 2 था, राइट, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट है। सो यू नीड टू रिमेंबर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ universal gravitational constant, okay. Now next interesting question is, why did Newton assume inverse square dependence on distance of his law of gravitation, right? तो ये तो समझना इजी है, राइट। ये देखो, ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया। सो न्यूटन सोचने लगा, राइट, कि एक एप्पल अर्थ पे गिर गया तो वो हमेशा सीधा क्यों गिरता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो उसने बोला अच्छा एक फोर्स होगा, उसको ग्रेविटी का फोर्स मैं बोलूंगा, और किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, क्योंकि उसने क्या सोचा होगा कि अच्छा दो चीजों का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स होगा, तो इसलिए उसने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स, तो दोनों को न्यूमरेटर में ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया, राइट। और
क्योंकि वो दोनों का मास मल्टीप्लाई करेगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर इंक्रीज हो गया तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ये तो समझ सकते हैं राइट, ये तो समझना इजी है। बट डिस्टेंस को उसने स्क्वायर क्यों किया, उसको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर दो चीजें बहुत दूर है तो फोर्स कम होगा, तो बस डिवाइड बाय डिस्टेंस कर सकता था राइट। डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों किया उसने राइट, इसलिए इसको बोल रहे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में डाला। डिनोमिनेटर में क्यों डाला है समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फोर्स डिक्रीज हो रहा है। whenever the distance between two objects increases the force of gravity decreases, तो इसलिए समझ सकते हैं उसने डिनोमिनेटर में क्यों डाला और उसका स्क्वायर क्यों लिया, ये हमको पूछ रहे हैं। सो why did Newton assume inverse square dependence on the distance of his law of gravitation, क्योंकि उसने कोई मेजरमेंट्स तो किए नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेविटी को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। तो उसने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर होगा। सो इसका आंसर एक्चुअली इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक हियर, ओके, ऑन पेज नंबर 5. So in page number 5 they say that यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट यूज करके, सेंट्रीपिटल फोर्स के कंसेप्ट यूज करके और केप्लर्स का जो थर्ड लॉ है उसको यूज करके न्यूटन ने प्रूफ करके दिखाया कि ये जो फोर्स होगा ग्रेविटी का वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो सिर्फ एक पेड़ से एप्पल गिरना और उससे ये बोलना कि अच्छा ये ग्रेविटी की वजह से गिरा, बस उतना नहीं था न्यूटन का जो काम था, ओके। उसने बहुत ज्यादा सोच समझ के और बहुत ज्यादा मैथ्स यूज करके ये प्रूव किया, ओके। इट्स नॉट जस्ट एज इजी एज सेइंग अच्छा ग्रेविटी का फोर्स होता है इसलिए सब कुछ नीचे गिरता है, इट्स नॉट दैट इजी। he had to do a lot of mathematics, he had to study many different laws that were already discovered by other scientists. For example उसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज किया, उसने सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यूज किया, उसने केप्लर का थर्ड लॉ यूज किया, तीनों को कंबाइन करके उसने ऐसा प्रूव किया कि अच्छा जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। so there's a lot of mathematics but sadly they have removed this part from your textbook. They have reduced the syllabus for this year, so I'm not going to go into detail, but if you really want to understand कि उसने इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों लिया, डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों लिया अपने फॉर्मूला में, so here is the mathematics and that's what I tell you all to do, right? Don't just understand the law, उसका जो मैथमेटिक्स है उसको भी समझो। जब तक तुम उसका पीछे का मैथमेटिक्स नहीं समझते you haven't fully understood that law, that concept। जब तक तुम मैथ्स में डीप डाइव नहीं करते, मैथ्स को ठीक से नहीं समझते, तब तक पूरी तरीके से तुम्हें वो लॉ नहीं समझा, ओके। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर ऑल दीज साइंटिस्ट टू डू ऑल द मैथ। अगर ये न्यूटन ने मैथमेटिक्स नहीं किया होता तो हमें ग्रेविटी 200-300 साल बाद पता चलता, और ये जो हम सैटेलाइट्स वगैरह भेज पा रहे हो वो नहीं भेज पाते, तुम लोग जो पबजी वगैरह खेल रहे हो अच्छे इंटरनेट में वो नहीं खेल पाते, ओके। आई एम नॉट श्योर इफ इंटरनेट इज कमिंग फ्रॉम अ सैटेलाइट, इट कम्स फ्रॉम द टावर, बट जीपीएस वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं दैट डेफिनेटली कम्स फ्रॉम योर सैटेलाइट्स और वो हम यूज नहीं कर पाते, ओके। So that's your answer to the question. If you're interested, I highly recommend you go and read this part in your textbook on page number 5. Next, there's a question, use your brain power type. Is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? समझो मैंने टेबल पे दो चीजें रखी है, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, या फिर तुम और तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी दोस्त बाजू में बैठे हैं एक दूसरे के, तो तुम दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? एंड इफ यस, अगर है, व्हाई डोंट द टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर? अगर टेबल पे दो चीजें रख दिए तो अपने आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो अगर फोर्स है ग्रेविटी का तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है? अगर तुम में और तुम्हारे दोस्त में ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन है तो तुम लोग एक दूसरे की तरफ चिपक क्यों नहीं जाते हो, राइट? सो दैट्स द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द law of gravitation in detail, in enough detail that you all can answer this question by yourself. So I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and try to answer the question by yourself, and then we'll come back and discuss it together, okay? Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and are ready with the answers in your notebook. Let us discuss the answer. So I told you, it's, देखो उस लॉ का नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ, हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो तुम्हारे टेबल पे रखो दो चीजें, बाजू बाजू में दो इंसान बैठे हैं, या फिर तुम ये जो इंसान बैठा है यहाँ पे और जो यूनिवर्स की दूसरी तरफ जो कोई ऑब्जेक्ट है, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है।
Hence, it is called as universal law of gravitational force or universal law of gravitation. So the answer is obviously yes. There exists a gravitational force between two different objects kept on the table or between me and my friend sitting beside each other. सबके बीच में gravitational force है. So first question का answer है yes. Next, if yes, why don't the two move towards each other? अगर दोनों अट्रैक्ट हो रहे ग्रेविटी से तो लोग एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं होते उस फोर्स की वजह से? So the answer to that is any two objects. Okay, this is part of the first answer itself. Okay, any two objects attract each other due to gravitational force. So यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, वो लोग दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं करते? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ड्यू टू देयर स्मॉल मासेस. उनका मास बहुत कम है. दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर व्हिच इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो टेबल पे जब दो चीजें रखते हो उनका मास बहुत कम है. किससे कंपेयर कर रहे हो? बहुत कम है यानी मैं पूरा का पूरा बुलडोजर रख दूंगा टेबल पे लाके, तो उसका मास तो कम नहीं होगा. डिपेंड्स किससे कंपेयर कर रहे हो. अगर मैं अर्थ के मास से कंपेयर करूँ तो इवन इफ आई पुट अ माउंटेन ऑन माई टेबल, उसका मास अर्थ से कंपेयर तो बहुत कम है, बराबर. So if you put two objects on your table or two people are sitting beside each other, their masses are very small as compared to Earth's mass. So उनका gravitational force भी बहुत कम होगा as compared to Earth's mass. And I showed you right. तो जो G का value है gravitational constant, वो G का वैल्यू है कैपिटल G, वो बहुत छोटा है. 0.6 into 10⁻⁻11. So 6.6 divided by 10⁻11. So 0.0006 इतना छोटा नंबर है वो. तो बहुत बड़ा मास होगा तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स इनफ होगा दो चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके, हेंस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन द टेबल और मी एंड माय फ्रेंड डोंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर. इसलिए तुम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे. टेबल पे दो चीजें रखोगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे. ओके, फोर्स है बट वो लोग मूव नहीं करेंगे. ओके, अट्रैक्ट हो रहे हैं, फोर्स भी है, अट्रैक्शन भी है, बट मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो इनफ फोर्स नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं भी इस वॉल को पुश कर सकता हूँ, बट मेरे पुश करने से ये वॉल हिलने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज फोर्स लगा रहा हूं मैं, बट फिर भी वो फोर्स इनफ नहीं है उसको मूव करने के लिए. ओके, समथिंग सिमिलर हैपेंस विद this case also. Last part of this learning session, high tides and low tides. So in all oceans there are two tides in a day. Okay, दो बार high tide आएगा, दो बार low tide आएगा. Okay, वो ऐसा क्यों होता है? So that is because of gravitational force of the moon. Okay, so यहाँ पे अर्थ और अर्थ के आजू बाजू वाटर है, ऐसे इमेजिन करो. Okay, this blue sphere, it's not exactly a sphere, blue ellipse जैसा दिख रहे हो, ये जो blue ellipse है वो हमारा वाटर बॉडी है अराउंड द अर्थ. सो ये जो मून है इस वाटर को अट्रैक्ट करने वाला है. ऑल्सो व्हाट यू नो इज, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जितना पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जितना दूर होंगे उतना कम फोर्स होगा. दैट ऑल्सो वी नो बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स. तो what is going to happen is earth is going to pull water, earth नहीं, moon is going to pull this water towards itself. Okay, अपनी तरफ खींच लेगा. तो इस साइड के पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, ये तो समझ में आता है. बट इस तरफ का पानी लेफ्ट साइड में किसने खींचा? राइट, ऐसा दिख रहा है राइट कि इस तरफ का पानी भी लेफ्ट साइड में खींच गया. तो यहाँ का पानी किसने खींचा? राइट साइड का तो समझ सकते हैं. सो ये यहाँ का पानी कैसे खींच जाता है कि पानी को भी थोड़ा खींच लेता है मून, बट अर्थ को भी थोड़ा खींच लेता है क्योंकि अर्थ पे भी तो थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है राइट. सो अर्थ पे भी थोड़ा सा खींच लेगा, तो एक साइड से बाहर निकल आता है, और जितना बाहर निकल आता है उतना ही अर्थ भी अंदर चला जाता है राइट, बिकॉज ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये वाला जो पार्ट है पानी का वो भी राइट साइड में क्यों नहीं जाता? दैट्स द क्वेश्चन यू शुड आस्क राइट. दिस पार्ट ऑफ वाटर शुड आल्सो गो टू द राइट बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स. द रीजन इज ये बहुत दूर है ना, देखो ये काफी दूर है, बीच में सन का जो डायमीटर है उतना डिस्टेंस है, तो ये काफी दूर है, तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इतना स्ट्रांग नहीं है. तो इस पॉइंट में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये मून के सबसे पास में. अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम है क्योंकि बीच में है थोड़ा, एंड इस पार्ट पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम है क्योंकि सबसे दूर का पार्ट है मून के राइट. सो पहले इस साइड के पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, फिर अर्थ को भी थोड़ा सा राइट साइड में खींच लेगा, इसलिए तुम्हें दो टाइड्स मिलेंगे. ओके, अभी इसमें जब अर्थ रोटेट करेगा, ओके, अर्थ विल रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस राइट, तो एक टाइम पे काफी हाई टाइड होगा,
सॉरी 2 टाइम पे, दिन में 2 टाइम पे हाई टाइड होगा और 2 टाइम पे लो टाइड होगा. So that's what they have explained here in this paragraph. Okay, so I expect you all to read this paragraph by yourself. खुद से paragraph read करो, understand it and remember it. Okay, these boxes are very important from exam point of view. They generally do ask things from such boxes. Okay, and that is it. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you state Newton's universal law of gravitation, the statement as well as the formula? And can you state the unit of capital G? What is capital G? Universal gravitational constant. उसका unit बता सकते हो क्या? उसका value बता सकते हो क्या? 6.67 into 10 raised to minus 11. If yes, मैंने तुम लोगों को आंसर बता दिया, but अगर तुम्हें याद था, then yes, you have accomplished today's learning objective. If not, you might have to revise something. You might have to go through your notes again. Okay, so that is it for this learning session. I hope you enjoyed. I hope you got a lot of insights कि ग्रेविटी इज नॉट सच एन इजी कंसेप्ट. ओके, इतना इजी नहीं है कि बस पेड़ से एप्पल नीचे गिर गया वो ग्रेविटी है, एंड ऑफ स्टोरी. इट्स नॉट दैट इजी. देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाट मेक्स फिजिक्स सो इंटरेस्टिंग, राइट? व्हेन आई फाउंड आउट कि जब एप्पल नीचे गिरता है तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट्स पे इक्वल लगता है. सो जो फोर्स से अर्थ एप्पल को खींच रहा है, सेम फोर्स से एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है. ये जब मुझे पता चला, आई थिंक आई वॉज ब्लोन अवे. मैं काफी 2-3 दिन उसी के बारे में सोच रहा था कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स फिजिक्स सो इंटरेस्टिंग, and that's why I love physics. I hope you all also found it interesting. And that is it for this learning session, and I hope we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and peace.